اور اب خبروں کی تفصیل۔ JNU کے سابق اسٹوڈنٹ لیڈر عمر خالد پر گزشتہ سال حملہ کرنے والے ملزم نوین دلال کو شیو سینا نے ہریانہ اسمبلی انتخاب میں ٹکٹ دیا ہے۔ 21 اکتوبر کو ہونے والے انتخاب کے لیے شیو سینا نے انہیں بہادر گڑھ سیٹ سے اپنا امیدوار بنایا ہے۔ شیو سینا کے ہریانہ چیف وکرم یادو نے نوین دلال کو پارٹی کا ٹکٹ دیے جانے کی تصدیق کی اور کہا کہ وہ گو رکشا اور ملک مخالف نعرہ لگانے والوں کے خلاف آواز اٹھانے جیسے مدعوں پر کام کرتے رہے ہیں، اسی لیے ہم نے ان کا انتخاب کیا۔ واضح ہے کہ اگست 2018 میں نوین دلال اور درویش شاہ پور نامی ملزمین نے عمر خالد پر اس وقت حملہ کیا تھا جب وہ دہلی کے کانسٹیٹیوشن کلب میں ایک پروگرام میں حصہ لینے کے لیے جا رہے تھے۔ اس حملے میں خالد بال بال بچ گئے تھے کیونکہ بندوق جام ہو گئی تھی۔ RSS سربراہ موہن بھاگوت کے موب لنچنگ کے تعلق سے دیے گئے بیان پر MIM سربراہ اسدالدین اویسی نے سخت نکتہ چینی کی ہے۔ اسدالدین اویسی جالنہ میں MIM کے امیدوار اقبال پاشا کے تشہیری جلسے سے خطاب کر رہے تھے اور اس موقع پر انہوں نے کہا کہ جب تک ملک کا آئین برقرار ہے اس وقت تک اس ملک میں جمہوری اقدار پر عمل ہوگا۔ اسدالدین اویسی نے کانگریس کو ڈوبتے جہاز سے تعبیر کیا، ساتھ ہی ووٹ کاٹنے کے الزامات کو بھی اپنے خاص انداز میں مسترد۔ مہاراشٹر اسمبلی چناؤ 2019 کے لیے MIM کے سربراہ اسدالدین اویسی پچھلے ایک ہفتے سے ریاست گیر دورے پر ہیں۔ اورنگ آباد کے جالنہ اسمبلی حلقے میں MIM امیدوار اقبال پاشا کے تشہیری جلسے سے اسد اویسی نے خطاب کیا۔ اپنے خطاب میں اسدالدین اویسی نے RSS سربراہ موہن بھاگوت کے موب لنچنگ پر دیے گئے بیان کو گمراہ کن بتایا، ساتھ ہی ملک میں صدیوں سے جمہوریت راج ہونے کے بھاگوت کے دعوے کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ موب لنچنگ جو ہے یہ بھارت کا حصہ نہیں ہے۔ میں ان سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ 1984 میں جب اندرا گاندھی کا قتل ہوا، اندرا گاندھی کے قتل کے بعد دلی کی سڑکوں پر جو سکھوں کا قتل عام ہوا، سکھ عورتوں کی اجتماعی عصمت ریزی کی گئی، سکھوں کو ان کے گلوں میں جلتے ہوئے ٹائر ان کے گلوں میں ڈالے گئے، وہ کیا تھا؟ وہ موب لنچنگ نہیں تھا موہن بھاگوت صاحب؟ MIM سربراہ نے کانگریس کی قدامت کا ذکر کرتے ہوئے اپنے منفرد انداز میں اس کا مذاق اڑایا اور نوجوانوں سے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے کی اپیل کی۔ کانگریس نے کو ایک بیماری ہے پرانی، جب سے ہم آئے مہاراشٹر میں 2012 سے، جب سے کانگریس بولتی نو ووٹ کاٹنے کو آئے، ووٹ کاٹنے کو آئے، ووٹ کاٹنے کو آئے، 2012 سے اتنا بولے کہ تم ہی خود کٹ کٹ کے ٹکڑے ہو گئے تمہارے۔ میں نہیں بھی گیا تو ہار گئے امیٹھی کی سیٹ، وہاں کیسا ہار گئے؟ کیا میرے عدنات جا کے امیٹھی کے لوگوں کو کان میں پھونک کے بولے مت ڈال ووٹ اس کو؟ MIM امیدوار اقبال پاشا نے اس بات کا عزم کیا کہ شہر کی گنگا جمنی تہذیب کو برقرار رکھتے ہوئے باہمی اتحاد کے ساتھ MIM کا پرچم بلند کیا جائے گا۔ جلسے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے، لیکن انسانی سروں کا یہ سیلاب MIM کے حق میں ووٹ میں تبدیل ہوگا یا نہیں، یہ کہنا دشوار ہے۔ نیوز 18 اردو کے لیے اورنگ آباد سے اظہر الدین کی رپورٹ۔ MIM کی گلبرگہ کی سیاست میں عملی آمد کے اعلان سے سیاسی حلقوں میں کافی ہلچل دیکھی جا رہی ہے۔ موجودہ تناظر میں یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ گلبرگہ میں MIM کے لیے کچھ اسکوپ ہے بھی کہ نہیں، وہی سیاسی تجزیہ نگار اس پر ملا جلا رد عمل ظاہر کر رہے ہیں۔ خاص رپورٹ۔ نظام اسٹیٹ سے علیحدگی کے بعد سے ہی گلبرگہ شہر میں مضبوط مسلم قیادت رہی ہے۔ سابق وزیر مرحوم محمد علی نے 2 دہوں تک اسمبلی میں گلبرگہ کی نمائندگی کی، وہیں 4 دہوں تک ڈاکٹر قمر الاسلام مسلمانوں کی آواز بنے رہے۔ سبز ہلالی پرچم کے نام پر مسلم لیگ کے ٹکٹ پر قمر الاسلام 3 مرتبہ اسمبلی پہنچے تھے۔ اس طرح سے دیکھا جائے تو گلبرگہ کا مسلم ووٹر جذباتی طور پر ملی لیڈر سے ہی وابستہ رہا ہے، اور اب مجلس بھی گلبرگہ میں ملی کارڈ کی آڑ میں سیاست میں جگہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اب گلبرگے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا انشاءاللہ۔
पूरी ताकत, पूरे एतमाद और पूरी प्लानिंग और पूरी तंजीम के काम के साथ गुलबर्गे में मजलिस का काम होगा। गुलबर्गा नॉर्थ असेंबली हलके पर MIM की नजर बताई जा रही है। ये हलका अक़लियती अक्सरियती तस्वुर किया जाता है, जहां 45% से ज्यादा मुस्लिम वोट है। गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में भी मुसलमानों ने इत्तेहाद मिल्लत के नाम पर मुत्तहदा तौर पर वोट करके कांग्रेसी उम्मीदवार बेगम कमरुल इस्लाम को कामयाब बनाया था। उस एतबार से अवाम जो है ना अपने कायद को इन तमाम शख्सियतों का मालिक देखना चाहती है। उस एतबार से कमर साहब के इंतकाल के बाद कोई शख्सियत अभी तक उभर ना पाई है। MIM ने गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया था, ताहम उसके बागी उम्मीदवार शेख वहाजुद्दीन ने मुकाबला करके 7,000 से ज्यादा वोट हासिल किए थे। इसी तनाजुर में गुलबर्गा में मजलिस की आमद को तज्जिया निगार एक अलार्मिंग सिचुएशन करार दे रहे हैं। दो फैक्टर बड़े इम्पोर्टेंट हैं। एक फैक्टर ये है कि अवैसी के पास कोई पोटेंशियल कैंडिडेट नहीं है जो सचमुच वो लेवल का अपने आप को साबित कर सके। और दूसरे बीजेपी का फैक्टर बहुत मजबूत हो चुका है, जबरदस्त हो चुका है। बाज़ तज्जिया निगारों का मानना है कि आज की सूरत हाल में MIM गुलबर्गा में जीतने की हालत में हो या ना हो, लेकिन दूसरी पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवार को हराने का मौक़िफ़ जरूर रखती है, और ऐसे में मकामी अवाम के लिए आइंदा इलेक्शन इम्तिहान का बाइस बन सकते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर ने एक बार फिर अपना असर दिखाया। भोपाल में वक्फ कब्रिस्तानों पर बड़े पैमाने पर हुए कब्जे और कॉलोनियां बनाए जाने को लेकर न्यूज़ 18 की खबर कहां गए कब्रिस्तान को मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने बेहद संजीदगी से लेते हुए 130 कब्रिस्तानों पर मकान और कॉलोनी बनाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है। खास रिपोर्ट। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर ने एक मर्तबा फिर असर दिखाया है। भोपाल में गायब होते कब्रिस्तानों पर हमने एक खास मुबाहिसा किया था, जिसने वक्फ बोर्ड को नाजायज काबिज़ीन के खिलाफ कार्रवाई के लिए मजबूर किया है। भोपाल के 187 कब्रिस्तानों में से 141 कब्रिस्तानों का कंट्रोल राज तौर पर MP वक्फ बोर्ड करता है, जिसमें से बोर्ड खुद ये मानता है कि 130 कब्रिस्तान गायब हैं। कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो अपॉइंट हुई है क्रिप्स, उसको हमने बुलाया, उनसे हम बात कर रहे हैं कि इसको GPS से इनको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि ये कब्रिस्तान कहाँ कहाँ थे और आज मौजूदा वक्त में वहाँ पर उसके क्या हालात हैं, कि वहाँ पर जो बिल्डिंग्स बन गई हैं, जो मल्टी बन गई हैं, उनकी पहचान करेंगे और वो कौन लोग हैं वहाँ पर और कौन लोग उसमें काबिज़ हैं। तो इस तरह से पहले हम ये जानकारी निकालें कि वो जो कब्रिस्तान है, मिसिंग कब्रिस्तान है, जो तकरीबन 130 के आसपास हैं, पहले उनकी पहचान और रस्मी लोकेशन और एट प्रेजेंट वहाँ कौन कौन लोग काबिज़ हैं उस पर और किस हैसियत से काबिज़ हैं, इसकी जांच शुरू करें। हालांकि वक्फ बोर्ड अपने कब्रिस्तान की वापसी के लिए GPS सर्वे कराने और कब्जा करने वालों के खिलाफ नोटिस जारी करने की बात कर रहा है, लेकिन भोपाल की समाजी तंजीमों को बोर्ड पर एतबार नहीं है। देखिए, वक्फ बोर्ड बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अभी एडमिनिस्ट्रेटर साहब बैठे हैं, वो भी बहुत सारी बातें करते हैं, मगर हम माने जब वो कार्यवाही की शुरुआत तो करें, कम से कम लोगों को नोटिस इशू करना शुरू करें, पता तो चले कि कब्रिस्तान कहाँ है, किस तरीके से। वक्फ बोर्ड पहल करे, आगे की लड़ाई शहर के लोग भी साथ मिलकर लड़ लेंगे। उसमें आगे कार्रवाई होगी, उनसे जो लोग मौके पर काबिज़ हैं उनको नोटिस देकर उनसे पूछा जाएगा कि वो किस अथॉरिटी से वहाँ पर काबिज़ हैं, उनके पास क्या लेटर है, क्या उन्होंने किसी से ख़रीदा है, किराएदारी की है, किस हैसियत से है वो वहाँ पर। उसके बाद फिर उस पर आगे कार्रवाई। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर के बाद मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कब्रिस्तानों की वापसी को लेकर अभी जो तेजी दिखाई है, अगर ये तेजी आगे भी बरकरार रही तो यकीनी तौर पर जमीनी माफियाओं के हौसले पस्त हो जाएंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। राजस्थान मदरसा पैरा टीचर्स ने आज मुलाजमत को मुस्तकिल किए जाने और तनख्वाहों में इजाफे को लेकर रियासत के वजीर अक़लियती उमूर शाले मोहम्मद से मुलाकात की। इस मौके पर मदरसा पैरा टीचर्स के ट्रांसफर के मुतालबे को कबूल किए जाने पर रियासती वजीर को तहनीत पेश की गई। शाले मोहम्मद ने मदरसा पैरा टीचर्स के मुतालबात से मुताल्लिक़ कहा कि कमेटी की रिपोर्ट आने पर इस जिद में कोई फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा शाले मोहम्मद ने न्यूज़ 18 को जानकारी दी कि रियासती हुकूमत अक़लियती इदारों को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए कई मंसूबों पर गौर व खौज कर रही है।
मांगे मैं तो हमेशा जब मंत्री नहीं भी था तब भी हमेशा मैं इनकी वाजिब मांगों की पैरवी करता था। तो आज मैं विभाग का मंत्री हूँ, अलग विभाग का, तो जो भी इनकी समस्याएं हैं उनको मैं अच्छी तरह समझता हूँ। अभी ये संविदा कर्मी हैं तो कुछ महिलाएं शादीशुदा हो गई, बीमार हो गई, तो उन लोगों को समायोजन करना बहुत ज़रूरी था। तो हमने मुख्यमंत्री जी से बात करके स्पेशल उनको उनके नज़दीकी स्थान पर हमने वहाँ कोशिश की है। बाकी जो BD कला की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, इनकी तमाम मांगे जो है उस कमेटी के समक्ष हमने रखी है। हमारे MO जो मिनिस्टर हैं वो उस साथ में उनके कमेटी मेंबर्स हैं, तो उनके पास पूरी डिटेल्स हैं। और मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी के भी साफ निर्देश हैं, कमेटी जैसे ही अपना निर्णय देगी तो तमाम इनकी जो मांगे हैं वो मांगे सरकार की तरफ से मैं समझता हूँ अच्छा फैसला होगा इनके हक का। प्रदेश कार्यकारिणी है और जिला प्रतिनिधि सारे आज आए थे, और अभी हाल ही में जो है डिपार्टमेंट की तरफ से 212 जो है समायोजन हुए हैं। पैरा टीचरों को जो है समायोजन किया है। पैरा टीचरों की ज़रूरत भी थी, और जो मदरसे खाली थे जिनमें पैरा टीचर नहीं थे, तो ये दोनों तरफ से जो है लाभ हुआ है, और ये एक बहुत अच्छी बात है और डिपार्टमेंट की एक बहुत अच्छी शुरुआत है। इसके साथ साथ हमने मंत्री जी से ये भी निवेदन किया मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण। दिल्ली में कौमी काउंसिल बराए फरोग़ उर्दू ज़बान के ज़ेर एहतमाम दारा शिको हयात ख़िदमत के उन्वान से एक कौमी सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस सेमिनार में बतौर मेहमान खुसूसी RSS के ज्वाइंट सेक्रेटरी गोपाल कृष्ण शामिल हुए, जबकि मेहमान एजाजी के तौर पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर, जामिया मिलिया इस्लामिया की VC प्रोफेसर नजमा अख्तर, NCPUL के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील और NCPUL के वाइस चेयरमैन डॉक्टर शाहिद अख्तर ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर शुरका ने कहा कि दारा शिको में गैर मामूली सलाहियतें थीं और दारा शिको ने आखिरकार यही पैगाम दिया कि दुनिया भाईचारे और मोहब्बत से ही चलेगी। यह बिल्कुल जायज़ नहीं। सूफी संतों का वतीरा हमेशा इत्तेहाद और यगानगत का रहा। तो मुझे वो मीर का शेर याद आ गया कि उस ग्वालियरी ने, मुझे लगता है दारा शिको के साथ इंसाफ नहीं हुआ है तारीख में। वो जितना सब लोग का ध्यान ये है कि औरंगजेब कट्टर था और ये था वो था। औरंगजेब क्या था वो इम्पोर्टेंट नहीं है, दारा शिको क्या था वो भी तो इम्पोर्टेंट है। वो उसी बाप का बेटा था, उसी ज़माने में था, और उसने ये इस चीज़ की ज़रूरत समझी कि हम लोग एक दूसरे को समझें और मिल के रहें। और यही नहीं, वो हमारे मुल्क के बाहर भी उसकी सरहदों को पार करके लोगों के पास गए और लोगों को यहाँ बुलाया, तो ताकि अच्छी तरह समझ सके, सबका पॉइंट ऑफ व्यू समझ सके। तो इसलिए दारा शिको को पढ़ना जो है बहुत इंटरेस्टिंग भी होगा और बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, और हम सबको इससे कुछ सबक मिलेगा। शहजादा मोहम्मद दारा शिको की जो ज़िंदगी है वो ज़िंदगी जानी जाती है एक जहती के लिए, भाईचारगी के लिए, अमन के लिए, और उनकी जो कुर्बानी है वो कुर्बानी को लोग जो है ना भूले और उनको याद करें और उनके बारे में जानने की कोशिश करें। ऐसे अलग से सीरीज भी हम लोग चलाने जा रहे हैं जिससे कि लोगों को हम उनके मालूमात में इजाफा कर सके और उनको बता सके कि जो कंपोजिट कल्चर है, हिंदुस्तान की जो तहजीब है, आपस में मिलजुल के रहने की जो विरासत हम लोग की, वो बहुत पहले से है, आज से नहीं है। तो उसको कैसे हम आगे भी और आगे बढ़ा सके। और आज जो एक कमी आ गई है कि लोग सिर्फ अपने मजहब के बारे में ही लोग जान रहे, दूसरे मजहबों के बारे में नहीं जान रहे हैं। तो इस तरह के पर्सनालिटी को लाकर उनको भी हम दूसरे मजहब के बारे में बताएं। इस प्रोग्राम का मकसद है हिंदुस्तान के अंदर आपसी भाईचारा डेवलप करना और लोगों को ये बताना कि हिंदू धर्म और इस्लाम मजहब के जो बुनियादी अनासिर हैं वो बिल्कुल एक ही है, और इन दोनों मज़ाहिब के दरमियान जो मुश्तरका पॉइंट्स हैं उसको हाईलाइट करना, ताकि हिंदुस्तान के अंदर जो मुनाफरत फैल रही है, नफ़रत फैल रही है, इस नफ़रत पे काबू पाया जा सके।
नाजरीन, अब रिलायंस जियो से दीगर नेटवर्क्स को अनलिमिटेड कॉल्स की सहूलत खत्म होने जा रही है। ट्राई की जानिब से नई रेगुलेटरी पॉलिसी के चलते जियो ने यह फैसला लिया। अब दीगर नेटवर्क्स के लिए मुफ्त कॉलिंग की सहूलत को खत्म कर दिया जाएगा। जियो के मुताबिक दूसरे नेटवर्क पर कॉल करने के लिए अलग से टॉप अप कराना होगा और फी कॉल 6 पैसे चार्ज लगाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के नौजवान तालीम के मैदान में आगे बढ़ना चाहते हैं। कश्मीरी नौजवानों का एक ग्रुप MBA की तालीम हासिल करने के लिए शहर बेंगलुरु आया है। इन कश्मीरी तलबा ने न्यूज़ 18 उर्दू की खबर को देखकर आला तालीम के लिए मुफ्त दाखिला हासिल किया और इन तलबा ने न्यूज़ 18 का बेहद शुक्रिया भी अदा किया। तो आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुझे इजाजत दें, आदाब। के IT शहर बेंगलुरु के ऑक्सब्रिज कॉलेज में 15 कश्मीरी तलबा ने MBA कोर्स में दाखिला लिया है। हाल ही में न्यूज़ 18 उर्दू ने ऑक्सब्रिज कॉलेज की खुसूसी पेशकश पर खबर नश्र की थी। जम्मू कश्मीर के हालात को देखते हुए इस कॉलेज ने वादी के 15 तलबा को MBA में मुफ्त दाखिला देने का बाकायदा ऐलान किया था और न्यूज़ 18 उर्दू पर इस खबर को देखने के बाद कश्मीरी तलबा ने कॉलेज की इंतजामिया से राब्ता किया और अब कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के 15 तलबा को बेंगलुरु के इस कॉलेज में 2 साला MBA कोर्स में एडमिशन मिल गया है और तलबा ने न्यूज़ 18 उर्दू का बेहद शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आखिरी मरहले में उन्हें MBA कोर्स में दाखिल होने का सुनहरी मौका मिल गया है। मैंने न्यूज़ 18 उर्दू का ये न्यूज़ देखता था, शाम की टाइम मैंने देखा नीचे ऐसे फ्री एडमिशन, नो डोनेशन, नो एडमिशन, नो रजिस्ट्रेशन चल रहा था, तो मैंने वो देख के घर वालों से बात की तो एडमिशन के लिए आ गए बेंगलुरु। तो एडमिशन हो गया है? हाँ, एडमिशन हो गया। 25,000 रजिस्ट्रेशन ले लिया, रेस्ट ऑफ द थिंग्स इन्होंने फ्री दिया और हमें अपना रहने के लिए खुद करना है, एकोमोडेशन हो गया। या डेफिनेटली वी वांट टू स्टडी। मैं तो CA कर रहा हूँ, घर में बहुत टेंशन चल रही है तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं स्टेट छोड़ के अदर स्टेट में स्टडी करूँ। हम घर पे थे तो न्यूज़ 18 पे आया था कि मतलब ऑक्सब्रिज कॉलेज है बेंगलोर में, उसमें एडमिशन MBA के लिए फ्री दे रहे, तो उसको सुन के हम यहाँ पे आए एडमिशन लेने। हम लोग 15 लोग आए हैं कश्मीर से और हम लोग 10 दिन पहले आए हैं यहाँ पे। हाँ, बहुत खुश है क्योंकि इस टाइम सबको पता है कश्मीर में क्या हालात है, तो उसकी वजह से हमारा 1 ईयर वेस्ट होने से बच गया। एडमिशन में जो हमारा 1 ईयर फिर से वेस्ट होता वो हमारा सेव हो गया। यहाँ पे आके मिली, यहाँ पे कि सेटिस्फाई हो गया यहाँ पे कि नहीं अच्छा है, यहाँ पे कॉलेज की फैसिलिटी सबसे बड़ी बात है वो यहाँ पे अच्छी है, प्लस जो हमारे लिए सिक्योरिटी है वो सबसे बड़ी बात है हमारी कश्मीरी गर्ल्स के लिए, वो भी हमें यहाँ पे मिली। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर पेरेंट्स भी सेटिस्फाई हो गए उससे, तो उन्होंने हमें यहाँ पे आने के लिए परमिशन दी। So I request all the students of Kashmir, you have to join the hands of. I just say you can go other states and enjoy your study there. ऑक्सब्रिज कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर मंजूर अली खान ने कहा कि कश्मीरी नौजवानों के लिए मुफ्त दाखिलों की खबर न्यूज़ 18 उर्दू पर नश्र होने के बाद ही वादी के कई तलबा ने कॉलेज की इंतजामिया से राब्ता किया। में न्यूज़ 18 उर्दू में कश्मीरी स्टूडेंट्स के लिए फ्री एडमिशन का जो दिया है उसका आज डेट के हिसाब से हमने 15 बच्चों को जो फ्री दिया था वो आज कंप्लीट कर लिया हमने। हम बहुत शुक्रगुजार हैं। कश्मीर के तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आए हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा इस बार। वाज़ेह है कि कश्मीर से ही ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर मंजूर अली खान और एजाज अली खान ने बेंगलुरु में 1997 में ऑक्सब्रिज कॉलेज कायम किया। कश्मीर के मौजूदा हालात को देखते हुए पहली मर्तबा इस कॉलेज ने मुख्तलिफ कोर्सेज में 25% सीटें जम्मू कश्मीर के तलबा के लिए मुख्तस करने का फैसला लिया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हलूर की रिपोर्ट।